together taken up this task of recognizing Mohammad Farah for taking on our rival Pakistan and finishing him in 1 minute 20 seconds. So we congratulate Farhan once again for that wonderful event. He has done it in Bahrain. And of course, Nalapad Academy, together taken up this task of recognizing Mohammad Farah for taking on our rival Pakistan and finishing him in 1 minute 20 seconds. So we congratulate Farhan once again for that wonderful event. He has done it in Bahrain. Here to felicitate Farhad for doing that great feat. When a victory is over Pakistan, it is always overwhelming for us. So, anything. So we are really happy that our boy could do that. He is a local athlete from Bangalore city. So we are especially happy for that. ಏನಿವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ನಾಲಪಾಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟುಗೆದರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫರ್ದಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿಷಯ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅವರ ಏನು ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಲ್ಲ, ಫೈಟ್, ಅದನ್ನ ವಾಚ್. And Secretary Karnataka State Football Association, Mr. Satyan Narayan, Mr. Roop of Bowring Institute President, Farhad is here on my left, and Omar Farooq from Nalapad Academy. So I think now I'll hand over the mic to Mr. Roop. Yes. Bowring Institute, established in 1863, has been promoting various sports activities, and today is a proud moment for the committee as well as Bowring Institute to host this very graceful event. In fact, I am thankful to KF. In any sports, what makes it more special today is that with the support of our president here, Mr. N.A. Harris from Karnataka State Football Association, as well as helping us out here, and the Nalapad Academy. The way we are doing this is because today Farhad has fought in Asia's #1 promotion. They've been able to do this in 5 continents. So Farhad is now a recognized fighter in the entire world today. So we not only concentrate on football, any sport which involves the youth, and we are also planning a drive against drugs which involves youth all over. Very shortly that will be unveiled.
So once again, I congratulate him because I have covered UFC in Abu Dhabi, where De Silva and Dana White were also present. So I know what a big achievement this is. So congratulations and all the best for this sport to grow. We at Nalpad Academy encourage sports as equal as our education. We believe in a child's holistic development, and mixed martial arts is part of our curriculum, and we've already started it. So giving a boost to Farhad here is a boost to us. So we are developing the sport, and we would like all the encouragement from everybody. It's also a form of self-defense, which I think is very important today. As Mr. Satya said, that it drives you away from drugs and other things. Sports always keeps you intact with your spirit. So this is a very important thing, and Nalpad Academy is always out to support sports. ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हमारे बच्चा फरहाद जीत कर आए हैं। चैलेंज, ऑनलाइन चैलेंज एक्सेप्ट कर पाकिस्तानी ने चैलेंज किया था, वो चैलेंज एक्सेप्ट कर जीत कर आया है। तो उसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी है, और ऐसे स्पोर्ट्समैन को सेलेक्टिवली हमें सपोर्ट करना भी चाहिए, और हम लोग ये स्पोर्ट्स को भी एनकरेजमेंट देना चाहिए। तो आज MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स बहुत ज़्यादा फास्ट से डेवलपमेंट हो रहा है इधर इंडिया में, एंड पर्टिकुलरली इन बैंगलोर। हमारा नालपाड एकेडमी भी स्टार्ट करे हैं MMA बच्चों को ट्रेनिंग देना। आई थिंक एज मैं अभी फुटबॉल एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट होने से हमारा प्लेयर्स को स्टेमिना डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी MMA से। सो यू फिजिकली मेक योरसेल्फ मोर फिट। आप देख सकते हैं कैसा है फरदान करके। फाइट हुआ एक्चुअली बहरीन में, और ये 5 मिनट का एक राउंड होता है। इसमें 3 राउंड खेलते हैं, और अगर चैम्पियनशिप बेल्ट फाइट हो तो इसमें 5 राउंड खेला जाता है, और इसको मैंने सेकेंड राउंड में हराया है। इस फाइटर का नाम था उलूमी करीम, और ये पाकिस्तान का बहुत तगड़ा जो है एथलीट है, और इसको थाईलैंड में भी बहुत इसका नाम है उलूमी का। तो ये चैलेंज एक्चुअली बहुत टफ़ था, जो कि इसके लिए मैंने इसके लिए उतना टफ़ ट्रेनिंग भी किया हूँ। और ये जीत हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों थी, क्योंकि पहले भी MMA शोज़ अभी से नहीं हो रहे हैं, बहुत पहले से हो रहे हैं MMA शोज़, और 2 बार जो है पाकिस्तान का 2 विन ऑलरेडी हो चुका है इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये जो 3rd फाइट थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जिसके अंदर हमारा विन बहुत ज़रूरी था, और जिस तरीके से विन हुआ है हमारा, वो एक्चुअली बहुत एक फैंटास्टिक विन है। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत बहुत हैप्पी मोमेंट है। ये सब जो एकेडमी का है, ये सब जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, जो भी यहाँ पे इवेंट्स हो रहा है, और बाकी भी जो हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें ट्रेनिंग वगैरह भी हमारी होती है, तो उसमें भी हमें हर जो भी हमारी नीड्स होती है वैसा सपोर्ट हमें दिया जाता है। मैं एक्चुअली बॉर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे शिफ्ट होके कुछ 5-6 साल हो गए, और मैं यहीं पे रहता हूँ। अभी मैं यहीं पे लोकल हूँ बेंगलोर में, और बेंगलोर में मुझे एक्चुअली अच्छा सपोर्ट मिला है बेंगलोर में, इसीलिए मैंने चॉइस किया हूँ कि मैं यहीं पे रहता हूँ और यहीं पे अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाता हूँ। और मेरे डैडी तो अभी एक्सपायर्ड हो गए वैसे, और मैं कुछ 13 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। ट्रेनिंग वगैरह पढ़ाई के साथ साथ मैंने ये किया हूँ, और प्रोफेशनल ये मैं 7 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, MMA के फील्ड के अंदर, और इंडिया में ही ट्रेनिंग करके इंडिया से ही मैंने ट्रेनिंग किया हूँ और फाइट किया हूँ इंटरनेशनल देशों में जाके। मैंने मोरक्को के अगेंस्ट फाइट किया हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइट किया हूँ, पहले भी एक पाकिस्तानी को हराया हूँ मैंने, और बहरीन के अगेंस्ट फाइट किया हूँ। ऐसे मैंने कई देशों के अगेंस्ट फाइट किया हूँ। तो इसमें मेरा इंटरनेशनल जो मैंने फ़ाइट किया हूँ वो है अभी 15 मैंने इंटरनेशनल फ़ाइट किया हूँ टोटल, उसमें से 12 विन है मेरा और 3 लॉस है। मेरे लिए यूथ्स को यही मैसेज है कि यूथ्स को अपने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मतलब एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ में अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई के साथ साथ उस चीज़ को आप साथ में लेकर चलो। जैसे कि मैंने भी यही सेम चीज़ किया हूँ, स्टडीज़ के साथ साथ मैंने MMA की जो है वो प्रैक्टिस रखा था। जब मुझे लगा कि अभी ये ठीक मौका है
आगे निकलने का, तब मैंने स्टडी स्टॉप किया और ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने फिर आगे निकलना स्टार्ट किया। और अभी यूथ्स में बहुत ऐसा भी हो रहा है कि कितने लोगों के पास करने के लिए एक्टिविटी कुछ है नहीं, तो वो लोग ड्रग्स की ओर भी मतलब जा रहे हैं। तो उसमें भी ध्यान है, जो फुटबॉल एसोसिएशन है हमारा कर्नाटका स्टेट का, तो वो उससे भी एक बहुत बड़ा स्टेप है कि और भी जो बच्चे लोग हैं, फुटबॉल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट और उसमें स्टेमिना भी बहुत अच्छा बिल्ड होता है। तो कहीं मतलब नाकारा रहना और एकदम फालतू में अपने एरिया में घूमना, इससे अच्छा यू कम टू द फुटबॉल क्लब, डू ट्रेनिंग, हैव फन, और उसमें आपका टाइम पास भी हो जाएगा, फिटनेस भी हो जाएगा। और अगर वो नहीं, आपको मार्शल आर्ट के अंदर है तो ऑल इंडिया एमएमए फेडरेशन है, उसके अंदर आपका टाइम पास भी हो जाएगा, ट्रेनिंग भी हो जाएगा, सेल्फ डिफेंस भी हो जाएगा, फिटनेस भी हो जाएगा, एवरीथिंग, एंड यू माइट मेक अ व्हाट यू नो, यू माइट गो अहेड ऑल्सो इन फ्यूचर।